In this video, we will discuss about barriers, advantages, disadvantages, and common errors in delegation. So we'll start with the barriers in delegation. To understand barriers clearly, we can divide barriers in three categories: barriers in the delegator, barriers in the delegatee, and barriers in the situation. The first point under barriers in delegator is when the delegator is having fallacy or mistaken belief that he can do any work in better way comparing to the others. So such kind of mistaken belief can lead to the problem in the delegation. As before starting the work, completing the work, one cannot say that he can do it better than others. The next point under barriers in delegator is if the delegator doesn't have enough experience in the job or experience of delegation. Next point is if the delegator is having insecurity regarding his job. If the delegator has fear of being disliked by people or the delegatees. If the delegator is having lack of confidence in his subordinates. If the delegator is perfectionistic person, then it can lead to excessive control over the subordinates. And when there is lack of organizational skills in balancing workload. Next we'll see barriers in delegate. If the delegatee or subordinate has lack of experience or lack of competence. If the delegatee is not ready or is avoiding the responsibility. If there is over dependence on the boss. For every task, every decision the delegatee is going and asking to the delegator, then also it can create barrier to the delegation process if he has lack of organizational skill. And the last point is if the delegatee has overload of work. Next we'll see barriers in the situation. This include points related to the work in process. Under this first point is one person show policy. So it means when there will be only one person who is going to see all the tasks and will be responsible for all the activities, then it can create barrier in the delegation process. या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब एक ही पर्सन को सारे टास्क करने हैं, उसके साथ हेल्पिंग हैंड्स नहीं है, तो उन केसेस में हम इसको वन पर्सन शो पॉलिसी बोलते हैं. तो टास्क बड़ा है, ज़्यादा लोग चाहिए, लेकिन एक ही पर्सन है, उसी को सारे टास्क करने हैं, that can create barrier too. Next, if the work is very urgent, in that case there will be no time to explain anything, and the expectation of the manager or the superiors will be no tolerance of any kind of mistakes if there is any confusion related to the responsibility and authority. And the last point is understaffing. If there are the number of staffs are less than required desired staff, then this can create barriers in the delegation. Now we'll see how delegation benefits us. So advantages of delegation. Effective delegation serves as a vehicle of coordination. अगर आप डेलीगेशन प्रोसेस को इफेक्टिवली कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में वो बहुत अच्छा है. नेक्स्ट एडवांटेजेस, जब डेलीगेशन की वजह से एक साउंड सिस्टम क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो कहीं ना कहीं से सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती है. डेलीगेशन के थ्रू जब हम काम डिवाइड करते हैं, किसी को टास्क दे देते हैं, तो जो एग्जीक्यूटिव बर्डन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. उसके साथ ही जो सुपीरियर्स हैं उनका जो टाइम है वो भी कम कंज्यूम होता है, क्योंकि ड्यूटीज़ डिवाइड कर दी जाती है. जब कुछ लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, जब डेलीगेट किया जाता है ड्यूटीज़ को, तो ऑटोमेटिकली जो डिले है, उसका जो टाइम है वो भी कम लगता है, लंबा टाइम नहीं लगता है. एक इफेक्टिव डेलीगेशन बिजनेस को इंकरेज करने में हेल्प करता है. डेलीगेशन की हेल्प से जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी पोजीशन भी बढ़ती है, उनका जो इम्पोर्टेंस है, अगर वो उसमें इफेक्टिवली वर्क करते हैं, इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका इम्पोर्टेंस भी बढ़ता है, सेल्फ वर्थ बढ़ता है, और जो उनका जॉब सेटिस्फैक्शन है वो अकॉर्डिंगली इंक्रीज होता है. नेक्स्ट वील डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन. Effective delegation requires sufficient training or skills. If subordinates are not having sufficient training or skills, then the result of the task will be bad. So it is must to have sufficient training or skills. नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, मोरल इश्यूज़. जब इस तरीके के टास्क सबऑर्डिनेट्स को मिलते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या उनको ये लगता है कि सुपीरियर जस्ट उसके पास अथॉरिटी है इसलिए वो उन्हें टास्क दे रहा है और उस टास्क का कुछ वैल्यू नहीं है, उनको कुछ बेनिफिट नहीं होगा, तो वो उस टास्क को करने में इंटरेस्ट नहीं शो करते, या फिर अगर वो उस टास्क को कर भी लेते हैं अपनी पूरी एबिलिटीज़ के साथ, लेकिन वो अंदर से मोटिवेटेड उस सिचुएशन में नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं से वो एक तरह का मोरल इशू है. डेलीगेशन में अगर लैक ऑफ अथॉरिटी है, अथॉरिटी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर अथॉरिटी प्रॉपरली नहीं प्रोवाइड की जाती है तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स हैं वो डिजायर्ड नहीं मिलते हैं.
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फंड्स चाहिए लेकिन आप फंड्स जहाँ से लेना है वहाँ से प्रॉपरली अप्रोच नहीं कर सकते हो, या वहाँ से आपको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, या आपको इतनी अथॉरिटी दी ही नहीं गई है कि आप डायरेक्टली वहाँ से फंड के लिए पूछ सको या मांग सको, तो कहीं ना कहीं से वो डेलीगेशन का जो प्रोसेस है उसको इफेक्ट करता है। काफ़ी टाइम डिसएडवांटेज तब भी मिलता है जब जो मैनेजर है या सुपरवाइज़र है या फिर जो भी सुपीरियर है वो थोड़ा सा परफेक्शनिस्टिक है। परफेक्शनिस्टिक होने के वजह से वो ज़्यादा कंट्रोल करता है प्रोसेस में किसी भी टास्क को करते हुए, तो उसकी वजह से जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलेबल या डिफ़िकल्टीज फील करते हैं, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट प्रॉपरली नहीं मिलेगा क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है या मोटिवेशन है उसका लेवल कम हो जाएगा। नेक्स्ट विल सी कॉमन डेलीगेशन एरर्स। जब अंडर डेलीगेटिंग हो जाता है या बहुत ज़्यादा डेलीगेटिंग या ओवर डेलीगेटिंग हो जाता है या इम्प्रॉपरली डेलीगेटिंग हो जाता है, यानी कि आपको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। फॉर एग्जांपल आपको अप्रोप्रिएट पर्सन लेना है अप्रोप्रिएट टास्क के लिए, टास्क क्या क्या होने चाहिए, किस तरीके से गोल अचीव करना है, वो जो रिजल्ट है उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। अगर वो प्रॉपरली नहीं हुआ है डेलीगेशन का पूरा प्रोसेस, उसको एनालाइज नहीं किया गया है, बीच बीच में सुपरवाइज नहीं किया गया है या बहुत ज़्यादा किया गया है, तो इनको हम कॉमन डेलीगेशन एरर्स बोलते हैं। There are few effective strategies of delegation that we can use. These strategies include giving assignment, proper communication, making work plan, creating work plan, feedback loop. Feedback loop का मतलब feedback दोनों साइड से, सुपीरियर की साइड से भी सबऑर्डिनेट की साइड से भी, और हर प्रोग्राम या हर प्लान या हर एक्टिविटी के बाद फीडबैक होना चाहिए। देन मोटिवेशन बिल्ड करना, कंट्रोल को मेंटेन करके रखना, ना ज़्यादा कंट्रोल हो ना कम कंट्रोल हो, टाइम लिमिट होनी चाहिए पर इतनी कॉन्स्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए जो कि अचीवेबल ही ना हो। देन रिजल्ट पे फोकस करना, यानी कि ऑब्जेक्टिव पे फोकस करने की बात की जा रही है, रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी पे फोकस होना चाहिए। सो दीज आर दी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी विच कैन हेल्प इन इफेक्टिव डेलीगेशन प्रोसेस। सो हियर वी हैव completed the topic delegation. Thank you.